Yes, yes, please. We'll start now. Dear Uh, friends, uh, I am pleased to introduce Professor C.P.S. Chauhan. Uh, Being my teacher, I am also happy to give this chance to introduce our teacher, Professor C.P.S. Chauhan, sir. Though he need not to introduce in the introduction, he is a passionate teacher, good researcher and extension work. Professor C.P.S. Chauhan did MSc Maths from BHU, MA, and PhD. He served at two center universities, BHU, Banaras Hindu University, and Aligarh Muslim University. He completed his successful term as a chairperson in Department of Education, Aligarh Muslim University, Aligarh. He was Dean Faculty of Social Science, Aligarh Muslim University, Aligarh, and acting Vice Chancellor of Aligarh Muslim University, Aligarh. And after retirement, he has been appointed as an honorary director, Inter-University Center for Teacher Education, IUCTE, at Banaras Hindu University, Banaras, and a sizable number of publications he owns, and more than 6 books at international and national level he has published, and a wonderful PhD guidance he has supervised to the department in the Department of Education, Aligarh Muslim University. He was a reputed a member of examining body of University University Grant Commission and Union Public Service Commission. Member of various committees set up by the UGC, and worked as in at NEPA and performed and formulated policy documents. Resource person for LEAP, LEAP and CALM programs of Ministry of Education, HRD Ministry, member of various selection committees, and I think there is a very less time, and I think to introduce him, I don't want to be hiding between you and Professor C.P.S. Chauhan, sir. With these words, I would like to invite Chauhan, sir, kindly, sir, discuss your topic. okay, thank you. Welcome everybody. Thank Okay, you. मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है साफ? Ji, sir, you are very much audible. Okay, that's nice. Very great. Secondly, I want to know whether what will be our language. सभी लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या कुछ कैसे हैं, so that I want to communicate in a language which everybody understands. So कैसा रहेगा मुझे बताओ थोड़ा सा. Shall we English? Both language comfortable, sir. You want me to speak in a mixed language, isn't it? Yes, sir. Okay, I will try to do so. इंग्लिश के बाद थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं चीजों को, है ना, सो दैट एवरीथिंग बिकम्स क्लियर टू यू. एनीवे, देखिए टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा. इट इज हायर एजुकेशन इन इंडिया and its role in the 21st century. It's a very interesting topic, and in order to discuss the main theme, I have to ignore some of the things like historical development of higher education. कैसे higher education कैसे develop हुआ, पहली यूनिवर्सिटी कब खुली, and all this. I will try to skip over that. उसको मैं नहीं लूंगा. If I take that, it will take a lot of time. बहुत time लगेगा. So I'll come directly to the main theme: higher education system and its relevance to society. And how higher education will contribute to social development in future, specifically in the 21st century. So higher education से कैसे होगा? Let us first give a thought to what higher education can give a society, or what a society expects from higher education. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हायर एजुकेशन से कोई सोसाइटी क्या उम्मीद रखती है, what actually higher education is supposed to do. यानी हायर एजुकेशन क्या करे, क्या हमको दे, उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे. The most important thing that higher education does is it produces enlightened citizens.
देखिए enlightened citizens who would hold responsible positions in the government, in business, in judiciary and all other establishments. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. एनलाइटेंड सिटीजन्स की बात हम कर रहे हैं. ऐसे नागरिक जो जिनको गवर्नमेंट में, बिजनेस में, जुडिशरी में और दूसरे सेक्टर्स में प्लेस किया जा सके, एंड दोज हु कैन स्ट्रेंथन द सोशल एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. यानी एक तरह से जो हायर एजुकेटेड लोग हैं, वो जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी वैल्यूज के रखवाले होते हैं. दे स्ट्रेंथन इट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट द हायर एजुकेशन मस्ट गिव. Higher education must produce persons of integrity and ability who would protect our culture and values, and also at the same time hold responsible positions in the government, in business, and also in judiciary and all other establishment like education system and economic system. तो ये एक चीज तो ये है. दिस इज वन थिंग कि हायर एजुकेशन से हमने उम्मीद करते हैं. सेकंड इज हायर एजुकेशन प्रोड्यूसेस प्रोडक्टिव सिटीजन्स who contribute significantly to the productivity of the nation. यानी that means they contribute to the economy. इकोनॉमी को जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे लोग हमें चाहिए जो प्रोडक्टिव हो, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए. So higher education can be used as an instrument to enhance productivity, and it produces skilled manpower which can be absorbed in the economy. Whatever that means, the kind of people which are required by the economy are produced by higher education. यानी हायर एजुकेशन सिस्टम ऐसे लोगों को पैदा करता है, ऐसे प्रोडक्टिव लोगों को पैदा करता है, स्किल्ड मैन पावर देता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए जरूरत होती है. ये एक दूसरा रोल है हायर एजुकेशन का, जो कि ये बहुत जरूरी है. और सेकेंडली, earning capacity of citizens is directly and positively related to their level of education. That means, higher the level of education of a person, higher his income is supposed to be. ये मेन बात है. मानी सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि जो हायर एजुकेशन से पढ़ के, जो मतलब आया हो, जो निकला हो सिस्टम से, उसकी अर्निंग कैपेसिटी उससे ज्यादा हो जिसमें जो हायर एजुकेशन में नहीं गए. देखिए, ये बात कोरिलेशन की है. 100% नहीं ना हो ये जरूरी नहीं है. इट्स ए मैटर ऑफ पॉजिटिव हाई कोरिलेशन. So there is a high positive relationship, there is high positive correlation between level of education and level of income. So higher the education of a person, higher he is able to earn, उतना ही ज्यादा वो कमाएगा. ये इसकी हम ये मानते हैं. Then this is also an instrument of development of quality of life. जो higher education लोग जिनको मिलती है, those people earn better and therefore have a better quality of life, not only for themselves, they also improve the quality of life of the other people. दूसरों की इसमें भी वो मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं. तो ओवरऑल जो सोशल सिस्टम है, ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सोसाइटी की, उसको रेज करने में हायर एजुकेशन कंट्रीब्यूट करती है. तो ये दूसरी चीज हुई. Then higher education is supposed to reduce social inequality. देखिए, सोशल इनक्वालिटी को आम भाषा में कहते हैं सामाजिक बराबरी, असमानता. माने इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए आइडियली कि सोसाइटी में सब लोगों को रिसोर्सेज अवेलेबल हो, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, सबका SCS लगभग बराबर हो. सबका माने इक्वल तो हो नहीं सकता, लेकिन approximately. That means diversities should not be very large in terms of economic gain and economic wealth and everything. तो diversity बहुत ज्यादा ना हो.
इसलिए तुम कहता है कि जो इनइक्वालिटीज हैं उसको कम करने में हायर एजुकेशन मदद करती है, एंड देयरफॉर दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। देखिए, जैसे इक्वलिटी कम होगी, स्पेशली इकोनॉमिक एंड सोशल, तो आपस में विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा। तो ये कंट्रीब्यूशन भी हायर एजुकेशन का होता है, और हायर एजुकेशन ये करती है, एंड देयरफॉर दिस प्रमोट्स म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये माना जाता है कि जो सोसाइटी अच्छी पढ़ी लिखी होती है उसमें पीस होती है, आपस में रहन सहन अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, और वो आपस में पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। ये इसकी वो चीज है। इसके बाद हायर एजुकेशन आल्सो लीड्स टू सोशल, इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल मोबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका, एंड दैट्स व्हाई यू नो व्हेन वी आर इन अ जॉब वी टेंड टू enhance our qualification so that we get promotion। ये होता है ना कि हम अगर किसी जॉब में हैं, अगर हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम फिर आगे अपना MA करेंगे, कुछ और करेंगे, so that you know we rise and join the next higher position। तो इस तरह से ये सोशल वो प्रोफेशनल मोबिलिटी में काम आता है। सोशल मोबिलिटी भी बढ़ती है कि जैसे ही हायर एजुकेशन से इनकम बढ़ती है, सोशल स्टेटस बढ़ता है, इससे आदमी की सोशल पोजीशन भी बढ़ती है। जैसे उसकी पोस्ट बढ़ जाती है तो उसकी समाज में उसकी इज्जत, यानी सोशल रेपुटेशन उसकी बढ़ जाती है। तो ये चीजें इससे होती है। तो ये सोशल मोबिलिटी करने में भी ये so these are a few point through which we can understand what higher education can contribute to the society। ये चीजें हमको करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि हायर एजुकेशन हम देखेंगे कि पहले शुरुआत यहां से करेंगे कि वेयर वी आर, आवर सिस्टम, हमारा सिस्टम अब क्या है, अब हम कहाँ हैं, और जो कुछ है इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे और कैसे हमारी सोसाइटी इससे आगे बेनिफिट होगी, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। You know, in the year 1947, in the year of independence, we had only 20 universities। यूनिवर्सिटियों के नाम पर सिर्फ 20 थी। उससे पहले की हिस्ट्री में छोड़ रहा हूं, मैंने पहले बता दिया था कि इनफैक्ट हम 1947 से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं डिस्कशन। इससे पहले जो भी गुजरा हो, 1947 में जब आजाद हुआ हमारा देश, वी हैड 20 यूनिवर्सिटीज एंड nearly 500 affiliated colleges which were affiliated to these universities। यानी 20 यूनिवर्सिटी और 500 affiliated colleges हमारे पास थे। तो this was our institutional system, and the total enrollment in these institutions was nearly 2 lakhs। 2 लाख के करीब number of students थे उसमें उस वक्त, and this included 11th-12th क्लास लेवल ऑल्सो, क्योंकि तब सीनियर सेकेंडरी यूनिवर्सिटी का हिस्सा होता था। तो ये 2 लाख के करीब टोटल एनरोलमेंट था पूरे देश में, एंड द होल सिस्टम वाज रन बाय 21,000 टीचर्स। 21,000 के करीब टीचर्स थे। सो दिस वाज आवर सिस्टम दैट टाइम। इट वाज टू स्मॉल, बहुत कम था, एंड GER वाज hardly 7 or 8। When a GER means percentage of enrollment from the relevant age group, यानी 18 से 23 साल की जो पॉपुलेशन थी उसका 7-8% ही पढ़ने जाता था हायर एजुकेशन। It was too small as compared to other countries, and enrollment of women were very small। वो तो बहुत ही कम था। And in fact, higher education was accessible only to rich people। जो धनी लोग होते थे ना, वही उसमें जा पाते थे हायर एजुकेशन में। उस वक्त इतना छोटा सिस्टम था। And out of these 20 universities, one was Punjab University, Lahore, which went to Pakistan after partition। उसमें लाहौर की यूनिवर्सिटी भी शामिल है,
जो कि अब पाकिस्तान में है। तो ये हमारा सिस्टम था जो उस वक्त, और उसके बाद वी डेवलप्ड आवर सिस्टम एंड वी अंडरटुक large scale expansion, especially on the basis of the recommendations of Radhakrishnan Commission. The first thing that the government of India did after independence was to set up a commission for higher education. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज 1947 के बाद जो भारत सरकार ने की वो थी कि उन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में एक कमीशन बिठाया। उसका नाम था University Education Commission. This was the name, title of that commission, University Education Commission. And it was headed by Dr. Radhakrishnan, then Vice Chancellor of University of Madras. मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राधाकृष्णन, जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, ये आप जानते हैं, वो उस कमीशन के हेड थे। उस कमीशन ने बहुत सारी सिफारिशें की। दैट कमीशन recommended measures to be taken for expansion of higher education, and also the commission recommended the establishment of University Grant Commission, which was set up in 1953. 1953 में UGC की establish की गई, and it was based on the recommendations of University Education Commission. And thereafter, over the plans, 5-year plans, funds were allocated to all sectors of education, including higher education, and the system developed for the following years. And now, अब हम 23-24 में आते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें हुई, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, otherwise it will take a lot of time. Now, in the year after 76 years, 2023 and 24, we have more than 1160 universities. 1160 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है हमारे पास। अभी मैंने 2 दिन पहले कहीं पढ़ा है 1168 नंबर दिया था, तो मैंने कहा कि 1160 से ज्यादा। The number of universities at present are, universities means all educational institutions which award degrees, यानी जो भी डिग्री देती हैं उनको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, और इसलिए IITs, IIMs ये भी इसमें शामिल है। These are also included in it. So we have the total number of degree awarding bodies are 1160, and the number of affiliated colleges, which was only 500 in 1947, has gone up to 46,000. 46,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं हमारे पास। तो कॉलेजेस का नंबर भी बहुत बड़ा है, यूनिवर्सिटीज का भी बड़ा है, एंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु आर वर्किंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस इज 15.5 लाख, 15.5 लाख, 15, बल्कि और ज्यादा ही नंबर होगा। ये तो शायद 1 आध साल पुराना डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है maybe somewhere around 16 lakhs. तो 16 लाख के करीब हमारे यहाँ टीचर्स हैं। तो ये इतना काफी बड़ा सिस्टम है। एंड एनरोलमेंट इज वेरी लार्ज, एनरोलमेंट बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एनरोलमेंट जो है हमारा ही सबसे ज्यादा है। हालांकि इंस्टीट्यूशंस तो चाइना में ज्यादा है, लेकिन एनरोलमेंट हमारा ही सबसे ज्यादा है। एंड एनरोलमेंट इज 43.3 million. This is the latest report. ये लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 43.5 million means 4.33 करोड़, यानी 4.33 करोड़, which is a very huge number, बहुत बड़ा नंबर है ये। और in fact we have one of the third largest higher education systems of the world. First is USA and China. अब तो बल्कि चाइना सबसे बड़ा हो गया है, चाइना का सिस्टम सबसे बड़ा है, और USA का सेकंड हो गया। We are the third in that way. But enrollment is highest in our institutions. तो ये पोजीशन है। तो बहुत बड़ा एनरोलमेंट इस वक्त हमारा है। और ये समझिए कि आप
4.33 करोड़ है। ये कनाडा की पॉपुलेशन के बराबर है। टोटल पॉपुलेशन ही कनाडा की इतनी है जितना हमारा यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, जहां हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, विच इज ए वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ऑस्ट्रेलिया से 1.5 गुनी है ये हमारी यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट। यानी जो ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका 1.5 गुना हमारा एनरोलमेंट है। एंड सरप्राइजिंगली the population of 200 countries of the world is less than our university enrollment. 200 देश दुनिया में ऐसे हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन हमारे यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट से कम है। तो इसलिए वी हैव वन ऑफ द वेरी वेरी बिग सिस्टम। हमारा सिस्टम जो है ये बहुत बड़ा है। एंड नियरली a little more than 17% of the total enrollment of the world. पूरी दुनिया का जो एनरोलमेंट है वो करीब करीब 235 या 240 मिलियन के करीब है। पूरी दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो टोटल एनरोलमेंट है वो ये समझिए कि 24 करोड़ समझिए, 24 करोड़, उसका करीब 17% हमारा है, विच इज प्रोपोर्शनल टू आवर टू द शेयर ऑफ आवर पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन का शेयर है उसके बराबर है। तो ये हमारे उसका साइज है, हमारा जो सिस्टम है उसका साइज इतना बड़ा है। और फिर भी इवन देन वी से दैट आवर सिस्टम इज स्मॉल, छोटा है। देखिए इस बात को हमको समझना पड़ेगा क्यों छोटा है। हालांकि दुनिया का तीसरा सिस्टम है हमारा साइज में, एंड इवन देन we say that it is too small to fulfill our needs. हमारी जो जरूरतें हैं उनको fulfill नहीं करता। Large number of students come out of the school system every year, and for want of any alternative, they knock at the doors of the colleges. ये एक बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है जिसका हम सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। स्कूल सिस्टम से जो बच्चे आते हैं 11th 12th पास करके आते हैं, उनके पास कॉलेज का गेट खटखटाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी एवरीबडी वांट्स टू गो टू द कॉलेज बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। कोशिशें जरूर हुई है बीच में। एजुकेशन कमीशन, यानी थोड़ा सा बैक जाऊं हिस्ट्री में, 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एजुकेशन कमीशन बैठाया था। पॉपुलरली हम उसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं, आप नाम भी सुना होगा, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन सजेस्टेड दैट एट +2 लेवल, दैट मीन्स इन क्लास 11 and 12th, there should be 2 streams, one academic, the other vocational, and each stream should have 50% of the enrollment. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेजर रिकमेंडेशन थी। 11th 12th क्लास में हमें 2 स्ट्रीम रखनी चाहिए, एक वोकेशनल हो, एक एकेडमिक हो। एकेडमिक स्ट्रीम में जो जाए वो आगे हायर एजुकेशन में जाए, BA BSc में जाए, और जो वोकेशनल में जाए वो जॉब मार्केट में जाए, उनको सीधा जॉब मिले। और आधे स्टूडेंट दोनों स्ट्रीम में जाए, 50% एकेडमिक स्ट्रीम में जाए और 50% वोकेशनल। बट इन फैक्ट वी कुड नॉट पुट दिस आइडिया टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में ये हो नहीं पाया। द रीजन वाज दैट एक तो इट वाज टू एक्सपेंसिव फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फंड्स। बहुत महंगी स्कीम थी, महंगी सेंस में कि whenever you start some vocational course, you need laboratories, you need workshops, you need trained teachers. तो उसके लिए बहुत भारी ह्यूज फंड्स चाहिए। तो एक तो ये प्रॉब्लम हुई, उतना फंड नहीं था जिससे कि हम वर्कशॉप खोल सकते, लैब्स खोल सकते और ट्रेन टीचर्स अपॉइंट कर सकते। क्योंकि उसमें जो वो सिस्टम था उसमें इंजीनियर्स को अपॉइंट करना था, टीचर्स, क्योंकि वही उसमें पढ़ाते। तो वो उसमें ये देखो। सेकेंडली
दिस वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी में इसको एक्सेप्टेंस भी नहीं मिला, लोगों ने अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजा ही नहीं। सम स्कूल्स स्टार्टेड वोकेशनल स्ट्रीम्स, कुछ स्कूलों ने करीब करीब 10% स्कूलों ने nearly 10% school received grants from the government and started a vocational stream. उन्होंने किया, लेकिन उसमें 10% स्टूडेंट भी नहीं गए, वो क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं थी। Nobody wanted their child, I mean his child to send to vocational stream. तो ये एक समस्या थी, तो वो नहीं हो पाया, वो आज तक भी नहीं हुआ, और अभी भी प्रॉब्लम वही की वही है। Everybody coming out of a school system goes for higher education, and we do not have, accommodation for all of them. सबको हम हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं दे सकते, हमारे पास उतना सिस्टम ही नहीं है। एंड देयरफॉर वी अवर GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको कहते हैं, मैंने ग्रॉस एनरोलमेंट अभी आपको बताया था। GER इज द proportion of students enrolled in a particular sector of education out of the relevant age group. यानी इसको थोड़ा सा समझिए, यानी 18 तक तो हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन है, 18 साल की उम्र तक, ये आप जानते हैं। एंड बियॉन्ड 18 ए स्टूडेंट शुड गो टू द यूनिवर्सिटी और कॉलेज एंड रिमेन देयर अप टू द एज ऑफ 23 and 24 और 24, यानी 18 से 23 साल तक या 18 से 24 साल तक वो जो पीरियड है, उस एज के बच्चे हायर एजुकेशन में जाने चाहिए। तो हम कहते हैं दैट इज द रेलेवेंट एज ग्रुप 18 to 23, एंड वी हैव एट प्रेजेंट 28% of that population enrolled in higher education system. यानी वो जो एज ग्रुप है हमारा, उसका 28% ही हम एनरोल कर पाते हैं, 72% remain out of the ambit of that higher education system. हम क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज ही नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूशन ही नहीं, जाना सब चाहते हैं हायर एजुकेशन, लेकिन हम 100 में से 28 को ही दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, सिस्टम हमारा उतना बड़ा नहीं है, दुनिया के हिसाब से बड़ा है वो अलग बात, लेकिन हमारी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से हमारा सिस्टम बहुत छोटा है। So GER is only 28, which is nearly 12 point less than the world average. दुनिया का एवरेज 40 है, यानी पूरी दुनिया का अगर मिलाएं तो 40% लोग, 40% of the relevant age group are enrolled in higher education institutions, पूरी दुनिया। But in our country, only 28% of that group are enrolled in colleges and universities and other institutions. तो अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। That means we have to expand our system more. अब हमें और ज्यादा एक्सपेंड उसको करना पड़ेगा। We are unable to satisfy the need of majority of that age group. Majority, बहुत large majority of that age group. तो उसकी हम नीड को पूरा, और कुछ कंट्रीज में देखिए the average of the developed countries is 55. जो विकसित देश हैं जिनको कहते हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज, उनका जो एवरेज है 55 है उनका GER, और लाइक साउथ कोरिया हैज 94। अब समझिए साउथ कोरिया में 18 से 24 साल के जो एज ग्रुप है उसके 94% जो है स्टूडेंट वो जाते हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। तो इस तरह देखा जाए तो, और दूसरे यूएसए में भी बहुत बड़ा नंबर 88, और ऑस्ट्रेलिया में 72, जो डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज्यादा है। एंड इवन इन चाइना दी दिस फिगर इज 60। चीन में भी जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अभी तक तो चीन की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा होती थी, नाउ वी आर फर्स्ट इन पॉपुलेशन। रिसेंटली we have surpassed China as far as population is concerned. Recently I was reading somewhere that our population is nearly 144 crore now, 144 करोड़ के करीब है,
और चाइना इज 140, चाइना की 140 पर अटक गई है, उससे आगे नहीं बढ़ रही। एनीवे, तो ये है, तो ये एक प्रॉब्लम तो ये थी कि हमको सिस्टम को जो है सिस्टम को करना पड़ेगा। क्या हुआ ये, हैंग कर गया। जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ, ओके साहब, एक्सपेंशन की हम बात कर रहे थे, एक्सपेंशन को करना पड़ेगा। एंड अंडर एनपीई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी है एक्चुअली, एनईपी 2020, the government of India proposes to raise GER from the present 28 to 50 by 2035, यानी 2035 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स दैट आवर GER शुड इंक्रीज टू 50, 50 हो जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट चाहती है। तो इसलिए उसके लिए क्या करें, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? One is that we can increase intake in the existing institutions. जो हमारे पास सिस्टम है, the number of colleges and universities we have, we can enhance intake in it. और ज्यादा एडमिशन उनमें हम कर सकते हैं जो हमारे पास है, थोड़ी उसमें सीट बढ़ा दें, थोड़ा सिस्टम उसको यू नो और फैसिलिटीज बढ़ा दें, टीचर्स अपॉइंट कर लें। दिस इज वन वे। द अदर इज वी मे स्टार्ट न्यू, वी मे एस्टेब्लिश न्यू इंस्टीट्यूशंस, और ज्यादा इंस्टीट्यूशंस खोलें, दूसरा तरीका ही है। एंड थर्ड इज टू प्रमोट ओपन लर्निंग सिस्टम। तो ओपन लर्निंग सिस्टम है, उसको हम लार्ज स्केल पर प्रमोट करें, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए कि हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है जो कि वेट कर रही है हायर एजुकेशन के लिए, एंड वी डू नॉट हैव फैसिलिटीज फॉर दैट। तो कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। एंड ओपन एजुकेशन कैन बी वन वायबल ऑल्टरनेटिव। ये जो ओपन सिस्टम है, डीई मोड जिसको कहिए, डिस्टेंस एजुकेशन मोड, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, ये एक अच्छा सिस्टम हो सकता है। अभी तक डीई मोड में करीब करीब वी हैव 11% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट। जितना टोटल एनरोलमेंट हमारा है 4 करोड़ से ऊपर, उसका 11% ही है हमारा उसमें ओपन लर्निंग। एंड वी हैव 16 ओपन यूनिवर्सिटीज, 16 ओपन यूनिवर्सिटी है हमारे पास इस वक्त, जिनमें 14 यूनिवर्सिटीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड वन इज सेंट्रल इग्नू, एंड वन इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी समवेयर, कहीं कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एक है। इस तरह से 16 ओपन यूनिवर्सिटीज है। Then there are some institutions which are following dual mode, यानी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिन्होंने अपने डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर खोल लिए हैं और वो अपना दोनों काम करते हैं, रेगुलर टीचिंग एज वेल एज एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस डीई मोड, दोनों करते हैं। सो डुअल मोड इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो वेरी लार्ज इन नंबर, एंड देयर इज अ न्यू नीड टू प्रमोट देम फर्दर, और ज्यादा प्रमोट करें। एंड इन फैक्ट all universities should come up with distance education centers. सारी यूनिवर्सिटीज को खोल लेना चाहिए, so that we can cater to the needs of largest number of people. जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम यानी उसमें ला सके, बढ़ा सके, तो ये हमको करना चाहिए। एक ये, अच्छा, इसके बाद इनटेक की बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि ऐसा भी शिकायत है कि क्वालिटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस इज नॉट वेरी गुड, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। यानी एक तो सिस्टम बहुत बड़ा है in terms of numbers, and at the same time it doesn't satisfy the needs of the country, उस हिसाब से छोटा भी है, और दूसरा है कि क्वालिटी भी अच्छी नहीं है।
और उसकी अपनी वजह है. देखिए, if you look at the development, universities have increased 55-fold. 55 गुना यूनिवर्सिटी बढ़ी है. यूनिवर्सिटीज का नंबर है 1947 से बात कर रहे हैं, 1947 से आज तक यूनिवर्सिटीज 55 गुना बढ़ी है. कॉलेजेस 86 गुना, 86 times colleges, but enrollment has increased 200 times. एनरोलमेंट 200 गुना. अब उसी से आप अंदाजा लगा लें. कॉलेज यूनिवर्सिटी तो 55 गुना बढ़ी, कॉलेज 86 गुना बढ़े, लेकिन एनरोलमेंट 200 गुना बढ़ गए. एंड दैट हैज रिजल्टेड इन क्राउडेड कैंपस. कैंपस में भीड़, लार्ज क्लासेस, बड़ी बड़ी क्लासेस, स्पेशली इन कॉलेज. The recommendation is that teacher people ratio in higher education should be 10. 10 होनी चाहिए, एक टीचर के लिए 10 स्टूडेंट होने चाहिए. And this is the case with the world class universities. जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है उनके साथ ये है, उनके ऐसा है. लेकिन हमारे यहाँ ऑल इंडिया लेवल पे टीचर पीपल रेशियो इज 26. हमारे यहाँ 26 है. लेकिन ये तो एवरेज है ऑल इंडिया. इन सम ऑफ द कॉलेजेस द क्लास साइज इज मोर देन 100. कुछ कॉलेज में 100 से बड़ी क्लास. स्टूडेंट्स के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है. लार्ज क्लास. टीचर्स आर यूजिंग माइक्रोफोन्स फॉर डिलीवरिंग द लेक्चर्स. लेक्चर देने के लिए टीचर्स को माइक्रोफोन यूज करने पड़े. तो इसका रिजल्ट ये है कि बड़ी बड़ी क्लासेस हो गई और इक्विपमेंट उतना है नहीं. टीचर्स भी शॉर्ट है. Because when enrollment increases and we are unable to appoint proportionately number of teachers, then certainly there will be a shortage of teachers. Teachers तो कम हो जाएंगे. अगर enrollment बढ़ेगा और रिक्रूटमेंट नहीं होगा. अभी मैं कहीं डेटा पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 30 to 35% शॉर्टेज है टीचर्स की यूनिवर्सिटीज में. एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम अपॉइंटमेंट्स आर नॉट मेड. Even in the central universities में भी हालात अच्छे नहीं. तो टीचर्स की शॉर्टेज हो गई, ये सब हो गया. तो इससे ये सब चीजें हुई. तो इससे क्या होगा? क्वालिटी विल कम डाउन. देखिए, ये तो बिल्कुल इंडस्ट्री की तरह है. इफ यू इंक्रीज प्रोडक्शन विदाउट प्रोपोर्शनेट इंप्रूवमेंट इन द इनपुट क्वालिटी, the quality of product must go down. ये आप जानते हो. अगर आप रिसोर्सेज नहीं बढ़ाते और प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरेगी ही. ये तो बिजनेस का या इंडस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल है. ओके. तो ये चीज. अच्छा, एक चीज और आप लोग जानते हैं. Some international organizations have been publishing international university rankings for so many years, since 2004. 2004 से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश करती हैं. बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं और उस तरह का. जनवरी में हर साल आता है और 3-4 इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिश करते हैं. And in the beginning, some of our institutions, an IIT and Indian Institute of Science, Bangalore, IIT Kharagpur, या एक आध यूनिवर्सिटी, 2-3 इंस्टीट्यूशन हमारे टॉप 500 में होते थे शुरू में. बेस्ट 500 रैंकिंग जिनकी होती थी उनमें हमारे 2-3 इंस्टीट्यूशन आ जाते थे शुरू में. 2004 की बात बता रहा हूँ. And thereafter, over the years, number has also gone down and rank has also gone down. दोनों चीजें. नंबर भी कम हुआ, कभी 2 हो जाता है, कभी 1 ही रह जाता है टॉप 500 में, और उनका रैंक भी नीचे आ रहा है लगातार. और इस बार तो शायद मैं समझता हूं, अभी मैंने लेटेस्ट डेटा देखा नहीं है, लेकिन टॉप 500 में एक ही इंस्टीट्यूशन है इस साल के उसमें.
और आप नेट पे देख सकते हो। तो अब कहीं ना कहीं है प्रॉब्लम, इट वरीज अस, ये इसमें चिंता है हमारी। एंड ऑन द अदर हैंड, यूएस हैज 150 to 170 यूनिवर्सिटीज इन द बेस्ट 500, यानी बेस्ट 500 यूनिवर्सिटीज में यूएसए की 150 से 170 आती है हर साल, और जापान की भी 30-40 आ जाती है। इवन चाइना की इस साल लगभग 80 है, 80 है। तो ये हुआ क्या, हमें देखना पड़ेगा। तो नंबर लगातार घट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये हमको देखना है। और इवन इन द बेस्ट 200 अगर आप करें, सॉरी बेस्ट 50, 500 की बात हो, जो बेस्ट 50 है उनमें भी यूएसए की 10 है, और चाइना की भी 2-3 है, उसमें तो हमारा कोई है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो ये सब चीजें हैं, तो दैट मींस दिस द इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी बताता है। व्हाट वी आर डूइंग, अच्छा इसमें क्यों है ऐसा, थोड़ा बताता हूं मैं आपको ऐसा क्यों है। हालांकि हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है, वी हैव आईआईटीज, और हमारे आवर आईआईटी प्रोडक्ट आर रनिंग द इकोनॉमी ऑफ यूएसए। माने ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ वर्कर्स, साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स इन यूएसए आर इंडियंस, आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो हमारा जो टैलेंट है वो उनकी इकोनॉमी चला रहा। तो हमारा अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है ऐसा, लेकिन वो ज्यादा नहीं है, नंबर में वो बहुत कम। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि रिसर्च कंपोनेंट हमारा सबसे कमजोर है। रिसर्च कंपोनेंट इज द वीकेस्ट, सबसे खराब कंपोनेंट। एंड in the process of ranking, the organization give 60% weight to research related criteria, यानी रिसर्च से रिलेटेड जो आउटपुट है यूनिवर्सिटीज का, उसको 60% वेट दिया जाता है। जब वो रैंकिंग करते हैं तो 60% वेट इस चीज का है कि आपकी रिसर्च की क्वालिटी क्या है, आपके हाउ मेनी पेपर्स have been published in the best journals of the world। ऐसा नहीं है कि कहीं भी छपा दे। नो, जैसे साइंस में एक जर्नल आता है नेचर, उसमें कितने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपना तय किया हुआ है कि किस किस जर्नल है जो इंटरनेशनल है, उनमें छपाया तो मानेंगे, बाकी कुछ नहीं मानेंगे। एंड देन इंटरनेशनल अवार्ड्स, एकेडमिक अवार्ड्स, नोबेल प्राइजेस, यानी ये जो अवार्ड है ये आपकी यूनिवर्सिटी में कितने मिले हैं, ये सब देखा जाता है। और इस सब में हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई आवर यूनिवर्सिटीज रैंक लो इन द रैंकिंग सिस्टम। हम लोग सिर्फ क्या कराते हैं, हम लोग कराते हैं पीएचडी, हम लोग पीएचडी कराते हैं बस, और कुछ नहीं कराते। और पीएचडी में भी रिसर्च नहीं होती, वी आर प्रोड्यूसिंग पीएचडी विदाउट रिसर्च, दैट इज आवर प्रॉब्लम। एंड ह्यूज नंबर ऑफ पीएचडीज डे एंड नाइट लोग कराते हैं, बिकॉज somehow we have linked PhD degree with job and something। and a PhD कितनी का huge amount है। लाइक मैं आपको डेटा बताता हूँ, 2010-11 Indian universities awarded 10,000 PhDs, and after 10 years in 2020 and 21 the total number of PhD was 25,000, 25,000। और अब तो टाइम गुजर गया, मैं समझता हूँ करीब करीब 40,000 फिगर हो, 40,000 PhD पर ईयर आर बीइंग अवार्ड। तो इतना सब पीएचडी अवार्ड होने के बाद भी बहुत ज्यादा हमारा वो नहीं है। और पब्लिकेशंस नंबर में तो हमारे बहुत है, बिकॉज वी हैव सो मेनी जर्नल्स बीइंग पब्लिश्ड हियर एंड देयर, बट क्वालिटी वाइज कहीं नहीं है। इसीलिए जो हमारी यूनिवर्सिटी का रैंक जो है वो बहुत अच्छा नहीं आता, नीचे नीचे रैंक रह जाता है। तो ये है सर।
सोशल रेलेवेंस की अगर आप बात करें, करीब करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ 1 करोड़ अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज एवरी ईयर। माने हर साल करीब करीब 1 करोड़ लोग हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाते हैं। सम विद ग्रेजुएट डिग्रीज, अदर विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज, सब मिला के इतने आते हैं। और उनमें भी सरकारी डेटा ये बताता है 50% ऑफ देम आर नॉट एम्प्लॉयबल। ये सरकारी डेटा है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में बता रहा हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये लिखा है कि 47% ग्रेजुएट्स ऐसे निकलते हैं जिनको हम कोई जॉब दे ही नहीं सकते, उसमें लिखा। यानी जिस देश में आधे ग्रेजुएट्स ऐसे हो जो किसी काम के ना हो, दैट मीन देयर इज सम प्रॉब्लम समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल फिगर इज दैट nearly 2 million graduates and 5 lakh PGs are unemployed in the country. इतने लोग अनएम्प्लॉयड है जिनको जॉब नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम कहाँ है एक्चुअली? इनफैक्ट वी परहैप्स वी ओवर प्रोड्यूस। शायद जितना इकोनॉमी को जरूरत है उससे ज्यादा हम ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते हैं। Another problem is, अच्छा, एक रिपोर्ट में मैंने ये भी पढ़ा 75% MBAs, 75% MBAs and 80% engineers are not directly employable. उनको सीधे जॉब नहीं दिया जा सकता। तो ये जैसे ही ये निकल के आए इंस्टीट्यूशन से, हम सीधे उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। They must undergo some kind of training, कुछ ना कुछ उनको करना पड़ा, तब वो जॉब में जा पाएंगे। एंड अदर ग्रेजुएट्स, ये तो मैं MBA और इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं। दूसरे जो ग्रेजुएट्स हैं बाकी, जो आर्ट साइड के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, उनमें तो 10% ही लोग ऐसे हैं जिनको हम जॉब दे सकते हैं। दैट मीन 90% ऑफ आवर ग्रेजुएट्स इन जनरल एजुकेशन आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड। ये सारा का सारा डेटा सरकारी है, गवर्नमेंट का पब्लिश किया हुआ है। ये another interesting point is that unemployment rate increases with the level of education. This is more interesting. ये सबसे इंटरेस्टिंग बात। अनपढ़ आदमी है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट कम है, यानी जो बिना पढ़ा है वो अपना काम ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं। बट एज यू गो अप द एजुकेशन लेडर, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीजेस। मैट्रिकुलेशन में थोड़ा ज्यादा है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और ज्यादा है, PG लेवल पे और ज्यादा है। तो ये ज्यादा चिंता की बात है कि एजुकेशन लेडर में जैसे आप बढ़ते जाइए वैसे एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जाए। और जाहिर है इसके कुछ कारण होंगे, देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर दिस। कुछ तो रीजन होंगे इसके। वन इज दैट वी हैव सरप्लस मैन पावर बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन। हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे पास सरप्लस मैन पावर। देखिए, जो हमारा लैंड एरिया है ना, इस तरह हम समझे चीजों को तो समझ में आएगा। द लैंड एरिया of USA is 3 times the land area of India. यानी USA का जो एरिया है लैंड का वो हमारे से 3 गुना है। एंड आवर पॉपुलेशन इज 4 times the population of US. यानी हमारी पॉपुलेशन उससे 4 गुनी है USA से। Now this means the share of resources of one American is the same as that of 12 Indians. That is the main issue. असली बात यह है
यानी जितना देखिए, लैंड एरिया मीन्स रिसोर्सेस, क्योंकि लैंड से ही सब कुछ निकलता है, रिसोर्सेज तो वही है, वही से आते हैं, यानी रिसोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू लैंड एरिया। तो इस तरह देखा तो जितना यानी जितने रिसोर्सेज एक अमेरिकन कंज्यूम करता है, उतने रिसोर्सेज पर 12 इंडियंस हैव टू सर्वाइव। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। देयरफॉर बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन देयर इज पॉवर्टी, देयर इज पोल्यूशन, देयर इज क्राइम, इल हेल्थ एंड इवन सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत सारी चीजें हैं जो कि पॉपुलेशन की वजह से है। बट एनीवे, दिस कैन बी एन एसेट। हम ये भी कहते हैं कभी कभी भाई हमारे पास मैन पावर है तो वो हमारा एसेट भी है, दोनों ही बात है। The other reason for unemployment is that there's a skill gap between what is required by our economy and what is produced by our education system. इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही प्रोड्यूस करेगा मैन पावर। ये हम पहले बात कर चुके हैं। मैन पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम एंड मैन पावर इज consumed by economy. I mean, manpower is accommodated by the economy. But there is a mismatch between the two. What is produced by our education system is not accepted by the economy, and there is some kind of lack of dialogue between the two. दोनों में डायलॉग की बातचीत नहीं होती है कभी। फायदे में होना ये चाहिए कि जब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना जो करिकुलम है उसको रिवाइज करे, इंस्टीट्यूशन शुड इनवाइट सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री से लोगों को बुलाए एंड आस्क देम व्हाट दे नीड, उनकी जरूरतें क्या है, स्पेशली इन द नेक्स्ट 10 to 15 years, एंड अकॉर्डिंगली द करिकुलम शुड बी रिन्यूड। तो ये अरे यार देखिए, हाँ मैं कह रहा था कि डायलॉग होना चाहिए दोनों के बीच में, तो ये नहीं होता है, तो इसकी कमी है और इसलिए थोड़ी सी ये दिक्कतें हो जाती है कभी कभी। तो देन तो इसलिए ना उससे होता क्या है कि करिकुला जो है, जो सिलेबस है, जो ट्रेनिंग है, वो आउटडेटेड हो जाती है और कोई उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इस तरह से दिक्कत हो जाती है। एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, सबको सरकारी जॉब चाहिए, एवरीबडी लुक्स फॉर ए गवर्नमेंट जॉब। यानी कहते हैं जिसको सरकारी जॉब नहीं मिली वो कहता है मैं बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड हूं सामने, क्योंकि मेरे पास सरकारी जॉब नहीं। इवन इफ ही इज अर्निंग मोर इन सम अदर वर्क और इन ए प्राइवेट जॉब, भले ही प्राइवेट जॉब में ज्यादा कमा रहा हो या जो भी कुछ अपने घर का काम कर रहा हो उसमें ज्यादा कमा रहा हो, बट इवन देन ही विल से अनएम्प्लॉयड, क्योंकि सरकारी जॉब। सो एम्प्लॉयमेंट मींस गवर्नमेंट जॉब, एक ये प्रॉब्लम है, तो इसको थोड़ा सा करना चाहिए। और इसीलिए अब गवर्नमेंट जो है स्किल इंडिया और ये सब स्टार्टअप और ये सब करना चाह रही है कि लोग कुछ करना सीखें, बजाय इसके कि गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंड करें, कुछ करना भी अपने आप सीखें। और इसके लिए कुछ चेंजेस गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा हमको। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव बीन प्रपोज्ड इन NEP 2020। 2020 में हायर एजुकेशन में बहुत ही रेडिकल चेंज, और मैं ये मानता हूं कि अब तक जो पॉलिसीज पहले आई है, एक 1968 में आई थी, एक 1986 में आई थी, 1968 and 1986, two policies in the government in independent India. Those two were meant for strengthening the existing education system, but this one is for a change. तो ये हम मानते हैं। तो पहली दोनों पॉलिसी जो थी वो जो सिस्टम पहले था उसी को मजबूत करने के लिए थी, लेकिन ये जो नई पॉलिसी है 2020,
ये चेंज के लिए, दिस इज फॉर अ चेंज, एंड दिस प्रोपोजेस वेरी सिग्निफिकेंट चेंजेस राइट फ्रॉम स्कूल लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल. बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं. आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिसी में क्या क्या चेंज है, ये आपने पढ़ा. एंड द पॉलिसी हैज given a new definition to the university. देखिए यूनिवर्सिटी को ही रिडिफाइन किया इसने. According to the NPE 2020, university is a multidisciplinary higher education system. University is a multidisciplinary higher education institution with 3 to 4 years of undergraduate and postgraduate integrated courses. Integrated courses की बात कर रहे हैं. And research facilities along with community engagement. 3 चीजें हैं. एक तो 3-4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स हो. देखिए दो, एक बात तो ये कि ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी. एक तो ये बात, दैट मीन्स ऑल इंस्टीट्यूशंस शुड टीच ऑल सब्जेक्ट्स. सब जगह सब चीज पढ़ाई जाए. एक तो ये बात. दूसरा 3 to 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स. और तीसरा है रिसर्च की फैसिलिटीज भी हो हर इंस्टीट्यूशन. और कम्युनिटी एंगेजमेंट. देयर शुड बी कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द कम्युनिटी. यानी इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी के लिए भी कुछ करे. जो उसके चारों तरफ कम्युनिटी है उसके लिए भी इंस्टीट्यूशन कुछ करे. तो ये यूनिवर्सिटी की एक तरह से नई डेफिनेशन है. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वेयर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उनको नए सिरे से हमें ठीक करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, वी कैनॉट हैव ए सिंगल फैकल्टी इंस्टीट्यूशन. सिर्फ कोई इंस्टीट्यूशन ये नहीं हो सकता जो सिर्फ इंजीनियरिंग ही कराएगा और कुछ नहीं कराएगा. ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा. सारे इंस्टीट्यूशन सब कुछ पढ़ाएंगे. दिस चेंज विल टेक टाइम. एकदम एब्रप्टली नहीं होगा. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एंड देयरफॉर पॉलिसी हैज बीन गिवन 20 years टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन. 2040 तक का टाइम दिया गया है पूरा उसके लिए. एक अच्छी चीज और भी उसमें ऐसी है, जैसे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. यानी an individual can enter the university system anytime for studies and can leave anytime. जब चाहे जब छोड़ सकता है, जब चाहे वो एंटर हो सकता है. And even if he leaves a course after 1 year, 1 साल उसने मान लीजिए BA BSc किया और उसके बाद छोड़ दिया किसी वजह से, he will get a certificate. पहले ऐसा नहीं होता था. और पहले क्या होता था कि BA BSc पार्ट 1 किसी ने किया, ठीक है, उसको मार्कशीट मिल गई, लेकिन दैट मार्कशीट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मार्केट. जॉब में उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं थी. कहते थे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन इंटर ही है अनलेस यू कंप्लीट द होल BA और BSc. अब ऐसा नहीं होगा. 1 साल भी करेगा तो उसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा. दैट सर्टिफिकेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द जॉब मार्केट. ये एक नई चीज है. 2 साल बाद कोई छोड़ेगा तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा. 3 साल बाद छोड़ेगा तो डिग्री दे दी जाएगी. और 4 साल बाद पूरा कोर्स करेगा कोई, 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, along with रिसर्च कंपोनेंट. उसमें रिसर्च कंपोनेंट होगा. Then he will be given a degree and he will be qualified for direct entry to doctoral course, PhD degree. यानी सीधा एंट्री ग्रेजुएशन के बाद होगा. उसको PG नहीं करना पड़े. 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स along with रिसर्च कंपोनेंट जो भी करेगा उसको सीधा PhD में जाने के लिए एलिजिबिलिटी होगी. तो ये इस तरह के इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी तरह तरह के अलग अलग तरीके से दे रहे. कई साल के, 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स. एंड देयर विल बी a 5 year पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर स्कूल लीवर्स. यानी स्कूल से 12th पास किया, सीधे पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन
5 साल का कोर्स, सीधा पीजी डिग्री। ऐसा अब भी होता है कई जगह, लाइक इंजीनियरिंग में होता है और भी कई जगह होता है, टीएड कोर्सेज होता है। तो ये सब प्रपोजल्स हैं। यूनिवर्सिटीज भी दो तरह की होगी। There will be some universities which will have more emphasis on research than on teaching. Research intensive universities उनका नाम है, you know, RIUs. And there will be other type of universities which will have which will give more emphasis on teaching than on research. So those will be teaching intensive universities. इस तरह से categorization का भी proposal है. Then there is a affiliating system will go. एक ये बहुत बड़ा चेंज है. Colleges, in fact, system of college affiliation will be done away with in a phased manner. धीरे धीरे जो कॉलेज एफिलिएटेड का सिस्टम है इसको खत्म किया जाएगा. अब कॉलेजेस का होगा क्या? अब क्या करेंगे? इतने कॉलेज, 40,000 कॉलेजेस हैं. I don't know what will happen tomorrow. कल हो सकता है 2-4 और खुल जाए, God knows. इतनी तेजी से खुल रहे हैं कॉलेज. तो इन कॉलेजेस का क्या होगा? उसके लिए पॉलिसी कहती है कॉलेजेस विल बी गिवन टाइम टू डेवलप देमसेल्फ टुवर्ड्स द स्टेटस ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी. कॉलेजेस को भी धीरे धीरे मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट नॉट इन वन गो. ऐसा नहीं कि फौरन कर दिया. उनको कहा कि डेवलप योरसेल्फ and after assessment you will be given a status of autonomous college first. पहले autonomous college बना जाएगा और डेवलप होगा तो उसको मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बना दिया जाएगा. तो कॉलेज अब दो तरह के ही होंगे. एक तो ऑटोनोमस कॉलेज जो कि अपना करिकुलम खुद तय करेंगे, खुद एग्जाम करेंगे, सब कुछ खुद तय करेंगे और डिग्री बस यूनिवर्सिटी देगी. एंड देयर विल बी कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस व्हिच विल बी डायरेक्टली अटैच्ड टू द यूनिवर्सिटी. दो तरह के. बाकी एफिलिएटिंग कॉलेजेस नहीं हो. और धीरे धीरे वो जो दो कैटेगरी होंगी कॉलेजेस, उनको भी कहा जाएगा कि आप अपने आप को डेवलप योरसेल्फ so that you can be given the status of a university. क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत कम है. यूनिवर्सिटीज का नंबर हमको we have to raise the number to 2,500 within the next 10 to 15 years. अगले जब तक ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है तब तक 2,500 यूनिवर्सिटीज होंगी. Some of the good colleges will be converted to universities. ये सब होगा. तो ये चीजें आगे अब चलने वाली है. और जो सिंगल स्ट्रीम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल, ये सब नहीं, सबको सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा. तो ये चीज आगे होने जा रही है. इसके बाद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज वगैरह ये सब भी नहीं होगा. एंड एक चीज और है इसमें, टीचिंग को, क्योंकि क्वालिटी की जहां तक बात है, टीचिंग का जो क्लासरूम टीचिंग है इसको इंप्रूव किया जाए. एंड वन इंपॉर्टेंट प्रपोजल इज दैट क्लासरूम टीचिंग विल बी मेड ICT enabled. यानी ICT का यूज हर टीचर करे क्लासरूम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स विल बी लॉन्च्ड to implement this scheme. इसमें क्या होगा? सरकार को फंड देना पड़ेगा. All institution must create ICT instruments, equipment. यानी इक्विपमेंट पैदा कर क्रिएट करने पड़ेंगे इंस्टीट्यूशंस को. एंड फॉर दैट ह्यूज फंड विल बी रिक्वायर्ड. पैसा चाहिए, बगैर पैसे तो कुछ नहीं आएगा. मनी की जरूरत पड़ेगी. तो ये सब चीजें होगी. एंड अबव ऑल, large-scale training programs have to be launched for training teachers for using ICT equipment. ICT को यूज कैसे करेंगे उसकी large-scale training teachers को देनी पड़ेगी.
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमने देखा है कि बहुत सारे, खासकर जो सीनियर टीचर हैं, वो अभी भी बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो शायद माउस को भी हैंडल नहीं कर सकते, माउस भी नहीं कर पाते। वो तो बाकी चीजें थोड़ी दीजिए। हालांकि अब तो पावर पॉइंट वगैरह सब लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, थोड़ा हुआ, पहले तो ये भी नहीं था, हमने ये देखा। एंड सरप्राइजिंगली चिल्ड्रन कैन हैंडल ICT इक्विपमेंट बेटर देन एडल्ट्स। बच्चे ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, एडल्ट्स को उतना अच्छा नहीं होता। सो लार्ज स्केल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स हैव टू बी लॉन्च्ड। टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब जाके ये सब हो पाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम क्रिएट करना चाहती है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहती है, उसका नाम होगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एक सिस्टम बनाएगी जो इस सारे सिस्टम को देखेगी कि किस तरह हम हायर एजुकेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बनाए, कैसे हम टीचर्स को ट्रेनिंग दें, कौन कौन सी हमारी नोडल इंस्टीट्यूशंस होंगी, ये सब देखा गया। ओके, हाँ साहब, रिसर्च, जैसा कि मैं बता रहा था ना, सबसे कमजोर कंपोनेंट हमारा रिसर्च है। रिसर्च को इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। और जिन कंट्रीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपोनेंट अच्छा है, वे एडवांस्ड है। इनफैक्ट R&D is the vehicle for advancement for any society। कोई भी सोसाइटी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके एडवांसमेंट का एक तरह से वेहिकल है। तो रिसर्च को इंप्लीमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है। एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू, आई थिंक they have created an organization called नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी क्रिएट कर दी गई, ऑलरेडी दे हैव क्रिएटेड एन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ उसमें उसके लिए फंड एलोकेट किया गया था 2021-22 के बजट में। That means that institution has already started working, and that organization will oversee the research attempts being made in different organizations, and it will coordinate research endeavor, coordinate करेगा, and wherever needed it will also provide funds for research। इस तरह से यानी रिसर्च को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, और उसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एंड इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। पहले से ही काम करना उसने शुरू कर दिया है। एक चीज और इसमें है एनईपी में, क्योंकि हम किसी चीज में भी पीछे नहीं रहना चाहते। We want some world class universities also। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हो जो वर्ल्ड क्लास हो हमारे, एंड which might appear in the top 200 in the world, बेस्ट जो है उनमें हमारा नाम आए। So there is a proposal to set up new institutions, multidisciplinary education and research universities, multidisciplinary education and research university, MERU, MERU, multidisciplinary education and research university। इस तरह की, इस नाम की कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी, एंड those institutions will be given additional funds for development of research component। रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च के लिए उसको एडिशनल फंड दिया जाएगा। और इस तरह की जो सिस्टम है यूएसए में ऑलरेडी है। यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्ग बैक आइडेंटिफाइड 8 यूनिवर्सिटीज इन यूएसए। उन्होंने यूएसए में 8 यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई किया गया, और उनको वो कहते थे आईवी लीग यूनिवर्सिटी, आईवी लीग नाम दिया। These were the 8 best universities of USA। उनको आईवी लीग कहा गया, and those were in fact research universities which received
funds from the government for conducting quality research. क्वालिटी रिसर्च के लिए उनको फंड दिया जाता था और उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी कि आईवी लीग में अगर किसी का एडमिशन हो जाए बच्चे का तो बहुत खुश था, आईवी लीग यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, इंजीनियरिंग में दाखिला अगर आईआईटी में हो जाए तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, आईआईटी में दाखिला। तो इस तरह से आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर, यानी उसी लाइंस पर the government of India also wants to create मेरूज, उस तरह की यूनिवर्सिटीज क्रिएट करने की बात है। तो देखिए ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही है एंड वी हैव टू सी हाउ दीज आर इंप्लीमेंटेड। एक चीज और है जिसको बहुत सीरियसली हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। आपने एक टर्म सुनी होगी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन बहुत बात होती है। ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इज ए नियरली 400 बिलियन यूएस डॉलर बिजनेस। 400 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर का बिजनेस है पूरी दुनिया। एंड nearly 25% of that business shared by USA alone. यानी 400 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस है पूरी दुनिया में और उसका 25% सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के हिस्से में आता है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। करीब करीब 80 लाख students in the world study in the countries other than their own. 80 लाख बच्चे करीब करीब ऐसे हैं जो अपने देश से दूसरे देश में पढ़ते हैं, किसी और देश में पढ़ते हैं। और उनमें भी करीब करीब 13.5 लाख हमारे हैं इंडियंस। 13.5 लाख स्टूडेंट्स हमारे इंडियंस हैं जो दूसरे देशों में पढ़ते हैं। ये MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डेटा है जो मैं आपको बता, MEA का डेटा है, वहीं से मैंने एक दिन देखा था, तो वो है ही। तो इतने स्टूडेंट वहां पढ़ते हैं और जितने ये टोटल स्टूडेंट हमारे हैं उनमें से करीब 35% अमेरिका में ही है, अकेले यूएसए में जाते। चाइना एंड इंडिया, these two countries are the largest senders of students abroad. यानी अपने बच्चों को बाहर भेजने वाले दो कंट्री सबसे ज्यादा, यूएसए, सॉरी, चाइना एंड इंडिया। तो उसमें पहले तो चीन ज्यादा भेजता था, लेकिन अब ऐसा होता कभी किसी साल में चीन के ज्यादा जाते हैं, हिंदुस्तान के कम जाते हैं, और कभी कभी हमारे ज्यादा जाते हैं, चीन के थोड़े से कम जाते हैं। नाउ दिस इज हैपनिंग फॉर सेवरल इयर्स। तो ये है इस वक्त। और इसको अगर आप देखें तो इसमें खर्च कितना है। इंडियन स्टूडेंट्स स्पेंड नियरली 4 लाख करोड़ एवरी ईयर। 4 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करते हैं, which is nearly 50 billion US dollars। 50 बिलियन यूएस डॉलर है, इतना हमारा खर्च वहां बाहर हो जाता है। हमारे स्टूडेंट जाते हैं वहां, उनके पेरेंट्स जो है वो खर्च करते हैं। अब सवाल ये है वहां जाता कौन है, ये हमको देखना पड़ेगा और क्यों जाता है। देखिए हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन नंबर में बहुत कम है। कहीं कहीं तो ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है 99 से कम परसेंटाइल पर एडमिशन ही नहीं होता। दैट यू नो कट स्कोर इज 99 इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एंड इफ 99% is the cut score, that means anybody less than 99 will not be admitted. He is also not bad, वो बुरा नहीं है,
यानी 99 पे दाखिला हो गया, 99 से नीचे वाला का नहीं हुआ, 1 पॉइंट नीचे तो नहीं हुआ, तो वो भी बुरा नहीं है, अच्छा है वो भी, लेकिन उसका नहीं होता। तो बाहर वो जाते हैं, एक तो जो स्टूडेंट अच्छे हैं, दे आर गुड स्टूडेंट्स एंड दे डोंट फाइंड ए प्लेस हियर, वी आर अनेबल टू प्रोवाइड देम स्पेस प्लेस हियर, हम अपने इंस्टीट्यूशन में उनको जगह नहीं दे पाते, इसलिए वो बाहर जाते। एंड बिकॉज सम ऑफ देम आर वेरी ब्राइट, दे मैनेज सम स्कॉलरशिप अब्रॉड एंड दे स्टडी देयर। दूसरे वो लोग जाते हैं जो जिनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए एंड दे आर नॉट गेटिंग प्लेस हियर, यहाँ उनको जगह नहीं मिल रही, दे आर नॉट बीइंग एडमिटेड इन गुड इंस्टीट्यूशंस हियर एंड दे डोंट वांट टू गो इन ए पुअर इंस्टीट्यूशन, यानी किसी पुअर इंस्टीट्यूशन में, खराब इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं होता, तो वो लोग जाते हैं। अब वो कैसे जाएंगे, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बेचेंगे, बैंक लोन ऑल्सो, इस तरह से चले जाएंगे। एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑफ दोज हु हैव मनी and they don't study in India, their parents don't want them to study in India, ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनके पेरेंट्स चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे हिंदुस्तान में पढ़े, they should go बाहर ही पढ़ना। तो ये 3 तरह के लोग हैं जो वहां बाहर पढ़ने जाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया 4 लाख करोड़ रुपए हर साल वो लोग खर्च कर देते हैं वहां, एंड दिस अमाउंट इज मोर देन 4 times our annual budget for education। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो अमाउंट है ये हमारे एनुअल बजट का 4 गुना है, यानी आप समझिए कि 4 साल के लिए हम उतना एनुअल बजट अपना एजुकेशन का रख सकते हैं, इतना वो पैसा बाहर चलता है। तो ये है प्रॉब्लम। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ थोड़ा बहुत करना चाह रही है। Government wants to give permission to some of the good institutions from other countries, यानी दूसरे देशों से कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस को परमिशन दे दें, so that they can start their centers here, वो हमारे यहाँ अपने सेंटर खोल लें। And similarly our good institutions may also set up centers in their country। इस तरह का अरेंजमेंट कुछ करने की बात अभी हो रही है, and government has identified some 100 foreign institutions जिनको उन्होंने परमिशन दिया है ना, तो ये चल रहा है, ये काम हो रहा है। एक चीज और है कि जो बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स, 25% डोंट रिटर्न, यानी वापस नहीं आते। पूरी दुनिया में जितने स्टूडेंट हमारे जाते हैं 5-6 कंट्रीज में ही जाते हैं ज्यादातर, तो 5 or 6 countries are popular destinations where our students go, and 25% of those don't return, and most of them are from USA में जो जाता है उनमें से बहुत कम लौट के आते हैं, and some of them surrender their Indian citizenship and accept American citizenship, यानी citizenship भी ले बाकी छोड़ देते। तो ये सब मामला, ये सब चीजें सीरियस है, हमें इनको सोचना चाहिए। And that's why the government is planning to invite some of the foreign institutions to start their centers here, and also some of our Indian institutions will be allowed to set up centers abroad। तो ये चीज एक चल रही है, एक नई स्कीम है। तो ये मैंने आपको मेन बातें उसकी बताई पॉलिसी की, लेकिन कितनी अच्छी कोई पॉलिसी हो, it can be implemented if requisite funds are available। देखिए रिसोर्सेस हमारे पास होने चाहिए, फंड्स तो आपको पैसा बिना गुड़ डाले मीठा नहीं हो, है ना, ये आप जानते हैं। So you have to spend money, and for that the government must come out। तो ये सब सरकार को अब करना चाहिए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, 6% of the GDP was supposed to be spent on education। बहुत पहले
1966 में एजुकेशन कमीशन, इसका मैंने बात की, कोठारी कमीशन, एजुकेशन कमीशन in 1966 recommended that the government of India should spend 6% of GDP on education. 6% एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। अभी तक 4% से ऊपर हम नहीं गए हैं। यानी मैक्सिमम expenditure so far in a particular year has been 4%। और वो भी कब था? 2001 के आसपास था, मुझे ईयर याद नहीं है ठीक से। एंड फॉर द लास्ट 3-4 years, अभी आप देखें 3-4 साल में, the figure has been 2.9, 3% भी नहीं हुआ, 6% तो आधा भी नहीं हुआ। That means the government has to come up with resources। सरकार को रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे, पैसा खर्च करना पड़ेगा। छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो अच्छा खासा एजुकेशन पे खर्च करते हैं। इवन लाइक भूटान आप छोटा सा कंट्री, बगल में 8% खर्च करता है, 8% ऑफ जीडीपी। यूएसए 6% ऑफ जीडीपी एंड वर्ल्ड एवरेज इज 4.4, या आप समझिए कि 4.5% के करीब दुनिया का एवरेज है। एंड वी आर स्टक एट 2.9, हमारा 2.9 पे अटका हुआ थी। So we have to spend more money if we want to implement implement these proposals of NEP 2020 effectively। अगर ठीक तरह से करना है तो उसके लिए हमें फंड जुटाने होंगे। और देखता ही है कि सरकार क्या करती है। गवर्नमेंट इंडिया इज, the present government is saying that they have political will and they'll be able to provide funds for implementation of NEP 2020। So this is all about today। अभी आप, टाइम तो हो गया पूरा। Anyway, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके ले सकता हूं, है ना? हाँ साहब, सुमन मुखोपाध्याय। Participants, you may ask question and you have any query, you can ask to sir. He is available now. Suman, वैसे मैंने कोशिश की आपको ठीक तरह से हर चीज समझ में आ जाए, लेकिन इवन देन you have some doubt, you can ask me। Suman ma'am, you have raised your hand. Please ask. सुमन मुखोपाध्याय मैम, आपने हाथ उठाया है। हाँ, बोलिए बोलिए। मेरा नाम मौसमी मुखोपाध्याय है, सुमन मुखोपाध्याय नहीं। हेलो, यस प्लीज। मेरा नाम है मौसमी मुखोपाध्याय, सुमन मुखोपाध्याय। ओके, मुखोपाध्याय मैम, आपने हटा लिया। शायद वो नहीं पूछ रही है कुछ भी। हाँ, So then, is that okay now?